This conference will now be तो आप सबको recorded. पता है, students please mute your mic. If any student have any doubt, you can ask me in chat box. You have to keep your mic off. Okay, so we are here to study about the CSIR net GRF LS strategy. First of all, I would like to tell something about me myself, Dr. Pooja Saroha. I have the research experience in plant physiology, molecular biology, proteomics. I have completed my MSc in biochemistry from Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana. Last year, I have completed my PhD in botany from the Maharshi Dayanand University, Rohtak. Recently, I am working as assistant professor in Ganpat University from last 2 years. I have cleared ASRB NET exam, GATE exam, and many other teaching exams like CTET paper 1, CTET paper 2. So, students, first of all, आप सबको पता है कि कोई भी एग्जाम क्लियर करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए. First of all, you must be aware with the syllabus. So we are here to study about the life science exam. So 13 units are present. We have to study the 13 units. ये देखने में 13 units लगते हैं. Most students were present tomorrow. Yesterday class, most students were there in the Arpana ma'am class. जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन हुए वो मैसेज करके बता सकते हैं. जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, okay, so most of the students were joined today. Okay, many students also joined today. So there are 13 units in life sciences. First is molecules and their interaction. बच्चों, दिखने में ये आपको 13 यूनिट्स लगती हैं, बट ये लाइफ साइंस के फुल कोर्स को कवर करते हैं. जितने भी टॉपिक्स होते हैं इन 13 यूनिट्स में लाइफ साइंस के फुल टॉपिक्स कवर होते हैं. मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन में फुल बायोकेमिस्ट्री, biomolecules, their metabolism, their synthesis, all the biochemistry part will be there in this unit. Cellular organization. In this chapter, we will study about the cell processes, cell fundamentals, from the basic of cell to the cell signaling. All the processes are in the cell organization chapter. Then fundamental processes. It includes replication, transcription, translation, all these processes. Cell communication and cell signaling. इसमें आपको कैंसर, सेल सेल इंटरेक्शन और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे हम रीड करते हैं. डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, वी हैव टू स्टडी द जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, वी हैव टू स्टडी ऑल द botany part here. We have to study all the botany part here, all the kingdoms, 5 kingdom classification we have to study here. Ecology principle, we have to study all the ecology unit. Evolution, behavior, applied botany. In case of applied botany, we have to study about the fermentation and many more techniques. And last is methods in biology. बच्चों देखो 13 यूनिट्स हैं, इसमें 13 यूनिट्स को कोई भी मतलब फुल यूनिट्स को हम रीड नहीं कर सकते. अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए 13 यूनिट्स को रीड करना नेसेसरी नहीं होता. इसमें से कोई भी 7-8 यूनिट्स उसको हम अच्छे से रीड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू कि हम पूरी यूनिट्स को कवर करें. क्योंकि मैंने ऐसे देखा कि जो भी टीचर्स या जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फुल 13 यूनिट्स को रीड किया है, वो एग्जाम क्वालिफाई करने में एबल नहीं होते, और जो स्टूडेंट्स 7 या 8 यूनिट्स को अच्छे से करते हैं वो एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई करते हैं. क्लियर? तो आई थिंक सिलेबस इज क्लियर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. तो इसमें सबको पता, हर एक स्टूडेंट की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, इंटरेस्ट होते हैं. तो एज पर इंटरेस्ट अगर हम रीड करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस. क्लियर? किसी का इंटरेस्ट रहता है बायोकेमिस्ट्री में, रहता है किसी का प्लांट फिजियोलॉजी में, रहता है किसी के एनिमल में, रहता है किसी का जेनेटिक्स में रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस यूनिट में है. अपना इंटरेस्ट का एरिया हमें सेलेक्ट करना है बच्चों. क्लियर? ठीक है. यहाँ पे जो बायो सेटअप की जो फुल टीम है, इसमें जितने भी टीचर्स हैं, ऑल द टीचर्स आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड.
suppose I'm teaching you plant physiology, means I'm expert in plant physiology. Clear? I will teach you ecology, evolution, plant physiology. All of these are my specialization. तो आप ये यूनिट्स मेरे से पढ़ सकते हैं. अल्पना मैम की यूनिट्स अलग होंगी, अदर टीचर्स की यूनिट अलग होंगी. तो यहाँ पे जो बायो सेटअप की टीम है, सभी टीचर एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड में. क्योंकि ये यूनिट्स जो हैं, इसको कोई भी ऐसे होता है कि हमें यूनिट्स को जस्ट कंप्लीट नहीं करना, हमें उसमें से आउटपुट निकालना है. जस्ट कोर्स को कंप्लीट नहीं करना. ठीक है. हर तो उसमें हमें आउटपुट चाहिए. हमारा मेन पर्पस क्या है? हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है एनी हाउ, किसी भी तरीके से. तो वो मैटर नहीं करता कि हम कौन सी यूनिट से उसको पढ़ के क्लियर करते हैं. बट इन 30 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं जो मोस्ट ऑफ द पेपर को कवर करते हैं. क्लियर? आउट ऑफ दीज 30 यूनिट्स देयर आर सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स विच कवर मोस्ट. Hello, I'm audible now. I'm audible or not? Students, now I'm audible. Please message me, I'm audible or not. Now audible. Okay, sorry students. So in last slide, I told you about the syllabus. First of all, किसी भी एग्जाम को रीड करने से पहले
Hello, I'm audible now. Please message me. I think I'm audible. Yes. So we have discussed about the syllabus of the life science. हमने देखा था कि कोई भी एग्जाम क्लियर करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए. Clear? We must know the syllabus. What is the syllabus? So in the life science paper, there are 13 units. Molecules and their interaction, cellular organization, fundamental processes, cell communication and cell signaling, developmental biology, system physiology. Physiology में both plant physiology and animal physiology. We have to study plant physiology and animal physiology. We have to study about plant physiology and animal physiology, inheritance biology, which includes the genetics, the full genetics, pedigree analysis, and many more points. Then diversity. Diversity includes full botany, the full Whitaker kingdom, 5 kingdom classification we have to study in diversity. Then ecological principle. We have to study the ecology unit. Then evolution and behavior. Applied botany, methods in biology. एक बार बच्चों मेरे को कंफर्म करें, आई एम ऑडिबल और नॉट. Yes, ma'am, you are audible, but in middle your sounds are प्लीज मेरे को breaking. Your कंफर्म sound करें. is Okay sir, just a minute, maybe. Okay. 11th is evolution and behavior, applied botany and methods in biology. स्टूडेंट्स मैं आपको यही बोला था कि कोई भी स्टूडेंट 13 यूनिट्स को कंप्लीट कर कभी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता. क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि हमें सब यूनिट्स को कंप्लीट करना है. क्वालिटी मैटर करती है. ये क्वालिटी मैटर करती है. जितनी भी यूनिट हमें करनी है वो अच्छे से करनी है. साउंड इज ब्रेकिंग, जस्ट अ मिनट. I think there are some network issues. now you are audible, ma'am. Now you can continue. Okay. So we have to maintain the quality. तो जो बायो सेटअप की अपनी टीम है, इसमें क्या है, सभी टीचर्स अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं. वो आपको अपनी अपनी एक्सपर्ट यूनिट्स यहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना इंटरेस्ट होता है. किसी का इंटरेस्ट फिजियोलॉजी में जाता है, किसी का इंटरेस्ट इकोलॉजी में जाता है, किसी का इंटरेस्ट. Am audible or not? Some students are messing there that I'm not audible. Now I'm audible or not? Rajput Shivam message me I'm not audible. Am audible? Yes, ma'am, you are audible. To few students you may. कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहता है सेल बायोलॉजी में, कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहता है फिजियोलॉजी में, कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहता है डाइवर्सिटी के अंदर. तो सब अपना, सबसे पहले हमें अपना इंटरेस्ट देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस यूनिट में है. और यहाँ पे हर एक टीचर अपने फील्ड से आपको, जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन है प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी. सो ऑल ऑफ दीज आर माय स्पेशलाइजेशन. इन यूनिट से जो क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करवाती हूँ वो कभी भी गलत नहीं होते. ये यूनिट्स मेरी फिक्स रहती हैं. ठीक है. तो ऐसे ही अदर टीचर जो हैं उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं. तो यहाँ पे आपको सभी एक्सपर्ट टीचर से पढ़ने के लिए मिलेगा. ठीक है. तो आपको 7 या 8 यूनिट्स अपनी सेलेक्ट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल. आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द फर्दर प्रोसेस. इसमें कैसे रहता है, द पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, A, B and C. A पार्ट जो रहता है, A पार्ट इज अबाउट द एप्टीट्यूड, रीजनिंग. B part includes the full syllabus and C part is analytical part. In case of C part, the C part is most important part. The questions are of 4 marks in C part. In A and B, the questions are of 2 marks. जैसे आप पैटर्न देख सकते हैं एग्जाम का, 20 questions are present in A part, 40 questions present in B section and 60 questions are present in C section. Out of all these questions, we have to attempt 15
35 and 25. Out of 60 questions, you have to attempt 25 questions. Means हम कुछ portion अपना skip कर सकते हैं. Clear? Out of 60 questions, we have to attempt only 25 question. तो हमें सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या रहता है, हमें अपने टॉपिक्स वहां पे जो रीड किए हैं उनसे क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं कि आउट ऑफ दी 60 क्वेश्चंस हाउ मेनी टॉपिक्स आर फ्रॉम आवर यूनिट्स. तो इनमें से हमें अपने क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, फिर हमें 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं. जो सी सेक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ईच क्वेश्चन कंटेन द 4 मार्क्स. क्लियर? There will be negative marking. In this exam, there will be negative marking. 1/4 negative marking for incorrect answer. तो देखो बच्चों, अपने पास कितने ऑप्शंस बचते हैं. आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस वी हैव टू select 35 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ these 60 क्वेश्चन वी हैव टू select 25 क्वेश्चन. तो हमें इतने में तो हमारा फुल मार्क्स हमें मिल जाएंगे. हमें इनमें से भी सिलेक्ट करना है. हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पे अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे अगर 10 क्वेश्चन भी ठीक रहते हैं तो इजीली हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है. तो सबसे पहले हमें अपना फुल स्ट्रेटजी बनानी है. इसके लिए फुल ट्रिक्स के साथ हमें प्रिपेयर करना है. सी, दिस इज द फुल पैटर्न. पार्ट ए 20 क्वेश्चंस, you have to attempt 50 question. Each question contains 2 marks, negative marking 0.5. Part B, total question 50, 35 question you have to attempt. Question marks per question 2 marks, negative marking 0.5. Part C, it contains 75 question. We have to attempt 25 question. Each question carry 4 marks and 1 mark will be cut for each wrong answer. तो देखो बच्चों, अपना क्वेश्चन कितने मार्क्स का है पेपर? 200. आउट ऑफ 140 क्वेश्चन हमें 75 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं अपने यहाँ पे. आउट ऑफ 140 वी हैव टू सिलेक्ट 75 क्वेश्चन. इन 75 में से भी अगर हम 50 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो हम इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. क्लियर? ये इसके लिए ये पैटर्न है पेपर का. आई थिंक सबको क्लियर है. यहाँ तक प्लीज बच्चों मेरे को मैसेज करके बताएं. तो ये पैटर्न आई थिंक सबको क्लियर है. किसी को कुछ भी डाउट है? यस मनस्वी, क्लियर? एवरीवन यस्टरडे? यस एवरीवन. ओके. पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए contain the question of 2 marks, part B 2 marks, part C analytical part which 4 marks for each question. Now units to be focused. देखो units to be focused में क्या होता है, हर बार पेपर में कुछ पैटर्न रहता है, कुछ यूनिट्स रहती हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं. मेनली उसमें क्या रहता है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन. इसके लिए हमें फुल बायोकेमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स का जो पार्ट होता है उसको फोकस करना है. सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, इसमें से सी सेक्शन में 2 या 3 क्वेश्चंस मिलते हैं और बी सेक्शन में हमें क्वेश्चन मिलते हैं. इन केस ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी हार्मोन से क्वेश्चन रहता है अपना 4 मार्क्स में. हर साल आपको हार्मोन से क्वेश्चन देखने को मिलता है. वहां पे सिस्टम जो रहते हैं अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रहते हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. इकोलॉजी, इकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. इससे 7 या 8 क्वेश्चन हमें सी सेक्शन में देखने को मिलते हैं. क्लियर? इवोल्यूशन एंड बिहेवियर. इवोल्यूशन में अपना जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें जो अपने इराज होते हैं उससे हमें एक क्वेश्चन हर साल बी पार्ट में देखने को मिलता है और 1 या 2 क्वेश्चन हमें सी पार्ट में देखने को मिलते हैं. एवरी ईयर ये पैटर्न फिक्स रहता है. प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन रहता है. फाइटो हार्मोन्स, हार्मोन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. हार्मोन से क्वेश्चन हर साल हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है. फाइटो हार्मोन जिसमें साइटोक्रोम रहते हैं उससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो अपने हैं वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है. प्लांट फोटोसिंथेसिस, उस पार्ट से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है. सो अगर हम इन 7-8 यूनिट्स को अच्छे से करते हैं, प्रिपेयर करते हैं तो इजीली हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. क्लियर? सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इसमें कैंसर का टॉपिक एंड सेल सिग्नलिंग, उसमें रिसेप्टर्स रहते हैं, अपने लिगेंड्स रहते हैं, उससे क्वेश्चन हर साल
होता है एनिमल फिजियोलॉजी, हॉर्मोन्स का जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बी के लिए भी एंड सी सेक्शन के लिए भी, फॉर बोथ द सेक्शंस एनिमल हॉर्मोन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोलॉजी के लिए, इसके इकोलॉजी है अपने आप में, देखने में हमें सिंपल लगता है, हमें देखने में बिल्कुल इजी लगता है बिल्कुल, पर इससे हमें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, एलेंस रूल, किन सिलेक्शन, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन अगर उनको आप एक बार कर लेते हैं, और जेनेटिक्स का पेडिग्री एनालिसिस, उससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस जो आते हैं वो सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग में उसको हम काउंट करते हैं। तो इम्यूनोलॉजी से जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन इजी होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम इजी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर जो 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से मिक्स करते हैं उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ। तो बेटर ये रहता है बच्चों की हम उन यूनिट्स पे फोकस करें जिनसे क्वेश्चन हमें डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, लाइक एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, सेल सिग्नलिंग। अप्लाइड बॉटनी से हमारा एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी इजी देखने को मिलते हैं हमें। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन में ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, सबका बैकग्राउंड डाइवर्स है, कोई बॉटनी से है, कोई बायोकेमिस्ट्री से है, कोई बायोटेक से है। तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री से हैं तो वो अपना इस यूनिट पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उनमें हमारा क्वेश्चन इजीली हम वहां से निकाल सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में कैंसर में उसके इनहिबिटर्स कौन से होते हैं उस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड सिस्टम फिजियोलॉजी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, एनिमल फिजियोलॉजी, plant physiology, most important units. Ecology, 6-7 question every year, 6-7 questions are covered from these units. Ecology and evolution, evolution में geological time scale, the most important topic, उसमें इराज होते हैं, क्रिस्टेशियन इरा, पैलेजोइक, मीजोजोइक, जो भी इराज होते हैं उनसे हमें, ट्रायसिक, जुरासिक, उन इराज से हमें हर बार 2 मार्क्स में एंड 4 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन 7-8 maximum 9 units, we can focus only on these units. इससे ज्यादा यूनिट्स पे फोकस करेंगे तो हम इनको भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो यू मस्ट बी फोकस्ड। एग्जाम मोड ऑनलाइन है, एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स है, 180 मिनट्स, नंबर ऑफ सेक्शन 3, वी हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस 145 क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 400, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। लैंग्वेज बाइलिंगुअल होता है, ये हमारा हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है हमें। तो आउट ऑफ 145, तो ये हमारा फाइनल है यहाँ पे, आउट ऑफ 145 वी हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चन। 75 में तो हमें 200 मार्क्स मिलेंगे, आउट ऑफ दी 75 हमें अपने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो हमें ठीक करने हैं। तो हमारे पास कितने ज्यादा ऑप्शंस है बच्चों, देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि हम 8 या 9 यूनिट्स को प्रिपेयर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको भी हम प्रिपेयर करेंगे, तो इजीली हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारी इसके लिए स्ट्रेटजी थी। क्लियर टू एवरीवन? कुछ मनस्वी ने बोला है कि कुछ अलग था बच्चों, 145 क्वेश्चन, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है, ये जो मैंने लिया था वो मे बी उस स्लाइड में कुछ वेरी कर सकता है, बट आउट ऑफ 145 क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चन। ओके? बुक लिस्ट बच्चे जो क्लास में थे उनको भी पता होगा। तो इसके लिए ऐसे नहीं होता कि आप हैवी बुक लेके बैठेंगे, हैवी बुक लेके अगर आप बैठ जाएंगे, जैसे हमारी बायोकेमिस्ट्री लैरेंजर की बुक है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, एग्जाम साल में 2 बार होता है, सबको पता है, जून में एंड दिसंबर में। वी हैव द लिमिटेड टाइम, ऐसे नहीं होता कि हमें 3-4 साल का टाइम मिलता है। 6 मंथ्स में हमें आउटपुट निकालना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। एनी हाउ अगर हम इस फुल लैरेंजर बुक को लेके बैठेंगे तो कम से कम 1 साल में हम लैरेंजर बुक को ही कवर करेंगे, उसको हम पढ़ते रहेंगे, 1 साल में हम उस बुक को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन ना कर पाए, मतलब हमें क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड समझते हैं कि एग्जाम में हमसे क्या पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। उसमें जो उसके लिए गाइडलाइंस रिक्वायर्ड है, जो क्योंकि मैं 2011 से सीआईएसआर का एग्जाम दे रही हूँ,
तो जो टीचर्स इस एग्जाम को देते हैं, जिसको इसकी स्ट्रेटजी पता है, जिसको पैटर्न पता है, वो आपको प्रॉपर वे से गाइड कर सकता है। इस एग्जाम में स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट। दो टर्म्स होती है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर, बट यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमें एग्जाम का पैटर्न देखना है, हमसे क्या क्या पूछते हैं, लास्ट ईयर का पैटर्न, क्या एग्जाम का पैटर्न चलता आ रहा है, उनके बेसिस पे हमें टॉपिक्स निकाले, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो 2-3 साल तक फिक्स रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज करो अगर आपसे 1 साल में फोटोसिंथेसिस का नॉन साइक्लिक से क्वेश्चन पूछा है, उसका पाथवे पूछा है, तो नेक्स्ट दिसंबर में आपसे उसी नॉन साइक्लिक को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं, उसके रिएक्शन सेंटर्स के बारे में पूछ सकते हैं, पर क्वेश्चन टॉपिक्स वही रहते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर एक टर्म में आपसे टेनिन से क्वेश्चन पूछा है, उसका पाथवे आपसे पूछा है, तो नेक्स्ट टर्म में मे बी फिनोलिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें इसमें जो भी पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम को माइंड में रख के पढ़ना है कि एग्जाम में क्या पूछते हैं और हमें क्या पढ़ना है। ऐसे नहीं कि लेनेंजर की बुक उठाई, इधर हमने जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लॉडिश की बुक है, इस बुक को पढ़ने में अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं पता आपको, तो आप इस बुक को 1 साल तक पढ़ते रहेंगे, तब भी मैं मतलब बोलती हूँ कि समझ नहीं आती हमें। कितनी भी बड़ी बड़ी बुक, कार्प की बुक लेके बैठते हैं, उसमें सेल सिग्नलिंग का जो टॉपिक देखते हैं, उसका ही खुद एक आपको इतने बड़े पेजेस देखने को मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो हमें एग्जाम को माइंड में रखना है। जेनेटिक्स के लिए बुक है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए माइक्रोबायोलॉजी से बेसिक क्वेश्चंस आपसे ऑलमोस्ट पूछते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए हमारे पास जो फैकल्टी है वो आपको जो बताएंगे उससे आपका क्लियर हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बी सेक्शन में सिंपल इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन पूछते हैं, इम्यूनोग्लोबिन से पूछते हैं, एमएचसी मॉलिक्यूल से पूछते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एलर्जी जो होती है 4 टाइप की एलर्जी, उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजिकल तेज एंड जिगर, इसकी बुक है, मोस्ट बहुत अच्छी बुक है बच्चों ये, पर प्लांट फिजियोलॉजी की अगर आप तेज की बुक उठा के बैठेंगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा पढ़ने में, उसको समझने में उसको टाइम लगता है। ठीक है, गिलबर्ट की बुक डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सीएसआईआर नेट। जिसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के मैकेनिज्म पता लग जाते हैं, पाथवेज पता लग जाते हैं, उसमें जो लिम्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ऐसा नहीं होता कि आप क्वेश्चन जो करते हैं वो सिंपल थ्योरी से करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है। इवोल्यूशन के लिए बुक है, ये बुक्स की लिस्ट आपको इजीली मैम ने बताया होगा कल, लिस्ट है यहाँ पे। वीर बाला रस्तोगी की बुक होती है, इकोलॉजी के लिए पीडी शर्मा की बुक होती है, ऑडम की बुक रहती है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए विल्सन एंड वॉकर की रहती है, एप्टीट्यूड आरएस अग्रवाल की बुक इंपॉर्टेंट बुक रहती है, क्लियर। और एक हमारी बुक होती है प्रणव कुमार की, पाथ फाइंडर की बुक होती है। इस बुक, ये 2 बुक हैं इनकी जिसमें सिलेबस है। प्लांट मैम यू आर नॉट ऑडिबल। ये ऑडिबल, यहाँ तो सब ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइक ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम ऑडिबल, अभी बताओ मेरे को, नाउ ऑडिबल, ओके, यस, ओके ओके ओके, थैंक यू। सो प्रणव कुमार की बुक है, पाथ फाइंडर बुक है, उसके 2 पार्ट्स आते हैं, मोर देन सफिशिएंट रहते हैं वो। पर उनकी बुक क्या रहती है कि उनकी बुक में सभी जो हायर बुक्स होते हैं, जैसे विल्सन वॉकर है, तेजन जिगर की बुक है, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले रखा है। अगर हमें बैक स्टोरी नहीं पता, आपको पता है जैसे बैक स्टोरी होती है, फुल पाथवे होता है, तो अगर हमें फुल पाथवे क्लियर है तो हम उसको वहां से इजीली कैच कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारी बुक लिस्ट थी। सक्सेस के लिए आपको क्या करना है, मेरे सबका अपना अलग होता है पढ़ने का, कोई नोट्स बनाता है, पर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है, पहले टॉपिक्स को वहां से निकालना है, पेपर पैटर्न हमें देखना है, सबसे पहले हमें पेपर पैटर्न देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पेपर पैटर्न।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, उसके लिए हमें अपने इंटरेस्ट की यूनिट्स को सेलेक्ट करना है। जो हमारे इंटरेस्ट की यूनिट है उनको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोग इस टाइम तक सबको अपना इंटरेस्ट पता लग जाता है कि मेरा इंटरेस्ट फिजियोलॉजी में है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरे को बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आती। तो आपको दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको अपने इंटरेस्ट की यूनिट्स को सिलेक्ट करना है। मैं आपको सक्सेस मतलब ये पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स 13 यूनिट्स करते हैं उनको नॉलेज होती है, बहुत नॉलेज होती है, पर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। मेन रीजन क्या होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को समझ ही नहीं पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट देखने के बाद ही आप नोट्स पे फोकस करेंगे कि हमें नोट्स किसके बनाने हैं। तो अपना पहले आपको सिलेबस सामने रखो, सिलेबस में से यूनिट सेलेक्ट करो कि ये यूनिट मेरे को इसमें इंटरेस्ट आता है, ये यूनिट मैं कर सकती हूँ। सबने अब तक पढ़ लिया होगा, ऑलमोस्ट सिलेबस हम पढ़ चुके होते हैं बीएससी में, ठीक है। तो आपको अपनी इंटरेस्ट की यूनिट्स निकालनी है, उसके बाद उनको टिक करना है। आफ्टर दैट उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फुल टीम है, आपके लिए फुल टीम। प्लांट फिजियोलॉजी के अलग टीचर है, हर एक एक यूनिट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं यहाँ पे जो आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आप उनसे क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, यूनिट्स को सेलेक्ट करके नोट्स बनाएंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे। आफ्टर दैट मेन पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना हम सबके लिए अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम बच्चों यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे तो हम कैसे करेंगे, यूनिट टॉपिक हमने किया, आफ्टर दैट हमने उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखेंगे कि क्या उनसे पूछा गया है। साथ साथ हम एमसीक्यूज क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको करेंगे। इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। सपोज हमने आज हमारा जो टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस है, सपोज करो हमने फोटोसिंथेसिस देखा, हम फोटोसिंथेसिस जैसे ही कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के जस्ट बाद हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तभी उसका बेनिफिट है। थ्योरी पढ़ना और उस थ्योरी को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना, बोथ आर डिफरेंट। समझ में आया? थ्योरी पढ़ना इजी होता है, समझ में आ जाता है इजीली, पर उसको क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करना वो अलग रहता है। तो पहले हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक करने के बाद हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो उस यूनिट से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। देखो अभी अगर मैं आपको बोलूं, सपोज मेरा जो वीक पार्ट है, मैं अगर बोलती हूँ मेरे को सेल सिग्नलिंग नहीं समझ आती, तो मैं अगर आपको सेल सिग्नलिंग कराऊंगी तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर यू। ऐसे कराने को अगर होता है तो ठीक है, टीचर्स आपको करवा देंगे, ठीक है, आपको पढ़ के पढ़ा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होता, पीएचडी किया है तो पढ़ के पढ़ा सकते हैं। पर यहाँ पे टीचर्स ने अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग यूनिट्स को सिलेक्ट किया है। अगर मेरी स्पेशलाइजेशन प्लांट फिजियोलॉजी है तो मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी ही पढ़ाऊंगी ताकि आप उसमें अच्छा कर सकें। अगर मैं दूसरी यूनिट को साथ में लेती हूँ तो उसमें नुकसान है बच्चों का, ठीक है। जैसे अल्पना मैम, अगर उनकी स्पेशलाइजेशन बाइलिंगुअल, यस बाइलिंगुअल रहेगा बच्चों, yes, if Alpna ma'am is teaching you the cell signaling, this specialization is cell signaling, she will teach you the cell signaling only। अगर वो आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगी तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। प्रीति मैम, she will teach you microbiology, she is expert in microbiology, she will teach you microbiology concepts, the basic, all the basic terms, क्लियर। तो यहाँ पे जो बायो सेटअप की जो टीम है, जो फैमिली है ये हमारी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एवरी टीचर इज एक्सपर्ट एंड दे विल टेक देयर एक्सपर्ट यूनिट्स ओनली। ऐसे नहीं कि हमें कोर्स कंप्लीट करना, नो, वी हैव टू क्लियर द कंसेप्ट्स। ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड these 3 points you have to keep in mind. Firstly, you have to select your interest, the interest units। आपको सबसे पहले सिलेबस रखो, अपना इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट जो चीज आपको ज्यादा समझ आती है उसको टिक करें। आफ्टर दैट मेक द नोट्स, यू हैव टू मेक द नोट, शॉर्ट नोट, कंसाइज नोट्स। ओके, सबको क्लियर है? ऑल द स्टूडेंट्स गेटिंग माय पॉइंट्स? इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्री टू आस्क, you can ask me any doubt। if any of you have any doubt you can ask in chat box।
Okay, clear. Rishita, Jancy, Millie, okay, clear to everyone. आप I will teach you plant physiology, ecology, and evolution. 3 units. Plant physiology, ecology, evolution. यहाँ पे what can you expect from us? फुल कवर ऑफ द सिलेबस। हम देखो बच्चों यहाँ पे आपका फुल देखो हमें फुल कोर्स कवर करना है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपको 6 या 8 यूनिट्स यहाँ पे कराएं, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट है। वी विल कवर द फुल कोर्स with important points, notes. Okay, regular classes will be uploaded on YouTube, WhatsApp group and Telegram channel. Okay, previous year question paper ये मैंने आपको बता दिया। Firstly we will complete the topic, after that we will solve the previous year paper. Practice question. Every Sunday test will be taken, doubt clearing session will be there. You are free to attend any demo class and you are free to call anytime any teacher. Teachers will be available for you at all the time. आपको कभी भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे किसी टाइम भी किसी भी टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द फैकल्टीज आर वेरी कोऑपरेटिव। वो कभी आपको ऐसे नहीं करेंगे कि नहीं ये आपका टाइम है, आप इसी टाइम पे पूछें। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी टीचर एनी टाइम। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे क्या देखो बच्चों, एग्जाम क्लियर होना ना होना, ये देखो एक पॉइंट होता है कि हमने जो पढ़ा है अगर पेपर में वो आता है तो वी आर इजी टू क्लियर द एग्जाम। हम इजीली एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। बट 1% अगर एग्जाम क्लियर 1 अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकेंड अटेम्प्ट में आपके इतने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि विदाउट एनी गाइडेंस, विद योर प्रॉपर प्रैक्टिस, यू कैन क्लियर द एग्जाम ऑन बाय योरसेल्फ विद सेल्फ टीचिंग। सेल्फ स्टडी करके आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर 1% अगर हमारा एग्जाम दिसंबर अटेम्प्ट में नहीं होता, जून में नहीं होता, तो यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको नोट्स, आपको फुल एग्जाम का आइडिया होगा, तो विथ सेल्फ स्टडी यू कैन क्लियर द एग्जाम। साथ साथ यहाँ पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज के लिए भी सर ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में कहाँ पे पोस्ट निकली हैं, एसआरएफ की पोस्ट कहाँ पे हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। फी कंसेशन, ऐसा कोई यहाँ पे फैमिली की तरह है, हमने स्टूडेंट्स को फ्री में भी टीच किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम थी, हमने बैच ऐसे भी रन किए हैं कि स्टूडेंट्स को टीच किया है जिनको प्रॉब्लम थी, तो फी कंसेशन भी यहाँ पे मिलेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि फीस नहीं है तो आप क्लास में आ ही नहीं सकते, आपको फुल ऐसे करना है, एक टाइम पे फुल फीस आपको यहाँ पे देनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फुल कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। फुल कोऑपरेटिव, हमारा मेन फोकस क्या है कि हमें अपनी एजुकेशन क्वालिटी को इंक्रीज करना, इंप्रूव करना है, ताकि स्टूडेंट्स एग्जाम को ज्यादा अबंडेंस में, ज्यादा अमाउंट में क्लियर करे एग्जाम को। रिसर्च को हमें मोटिवेट करना है अपने इंडिया में, हमारा मेन फोकस ये है। फी मनी ये सेकेंडरी है, यहाँ पे हमारा मेन है कि हम टीचर्स को गुड एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मेन हमारा यहाँ पे ये रहेगा, प्रॉपर गाइडेंस। बच्चों किसी को कोई भी डाउट है तो ये ईमेल यहाँ पे है, टेलीग्राम ग्रुप है, एफबी ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, सारे चैनल्स है जहाँ पे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, देखो आपको ये तो पता है कि जो एग्जाम होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जेआरएफ एंड एलएस, लेक्चरशिप के लिए एंड जेआरएफ के लिए। जेआरएफ एक्टिवेट करने के लिए आपको किसी लैब को ज्वाइन करना पड़ता है। यू हैव टू ज्वाइन एनी लैब विद इन 3 years. After that your JRF get activated. For teaching you have to clear the LS. अगर सपोज लो एक टाइम आपका LS क्लियर होता है, आपने यहाँ पे टीच किया, नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करके 0.5 से 1 या 2 क्वेश्चन के गैप से अगर हमारा एग्जाम रह भी जाता है, तो हम नेक्स्ट टाइम, एग्जाम साल में 2 बार होता है, बेनिफिट ये है कि 2 बार एग्जाम कंडक्ट करते हैं इस साल में, तो हम नेक्स्ट टाइम अपने वीकनेस जो है उसको क्लियर करके दोबारा उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और इजीली क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, स्टूडेंट्स यू आर फ्री टू आस्क। इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you are free to ask. Dear participants, if you have any kind of questions, just post in the comment section. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, यस यू आर इन बीएससी, यस बच्चे आप कर सकते हैं तैयारी,
देखो मैंने आपको यही बोला था कि एग्जाम क्लियर करने से पहले हमारे कंसेप्ट लाइफ साइंस में अगर हम लोग आ गए हैं, सपोज हमने लाइफ साइंस फील्ड में एंटर किया है, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप बीएससी में है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, आप अभी स्टार्टिंग से इस फील्ड में आ गए हैं, यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ, तो आपको स्टार्टिंग से ही आपके बेस, एमएससी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एमएससी में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ड्यूरिंग एमएससी आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, आप एमएससी टाइम पे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या रहती है कि उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता, आफ्टर एमएससी सोचते हैं, फिर उनको टाइम लगता है, फिर 1-2 साल निकल जाता है, फिर हमारा स्टेमिना, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। बीएससी टाइम से बेस्ट बुक फॉर प्लांट फिजियोलॉजी, ऋषिता, पेज एंड जिगर, पेज एंड जिगर इज द बेस्ट बुक फॉर प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, यस, बीएससी स्टूडेंट जो है वो भी पे कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चों। मैं खुद अपना पर्सनल ओपिनियन अगर दूं, मैं पर्सनल एडवाइस अगर आपको दूं, तो मैं यही बोलूंगी अगर आपको प्लेटफॉर्म मिलता है तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आप एमएससी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपकी एमएससी अच्छी स्कोरिंग होगी, आप ड्यूरिंग एमएससी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। जस्ट एमएससी क्लियर करने के बाद आप कोई भी अच्छी लैब ज्वाइन करके अपना जीआरएफ एक्टिवेट कर, जीआरएफ में बहुत अच्छी फेलोशिप हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, 30+ फेलोशिप, फिर उसको एसआरएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी फेलोशिप है और बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे। फिर उसके बाद आप अच्छी लैब में वहीं पे आप एज ए रिसर्च एसोसिएट अप्लाई कर सकते हैं, अबंडेंस ऑफ स्कोप आर देयर। बस आपको एक बार खुद के माइंड सेटअप करना है, आपको खुद को क्लियर करना है कि हाँ हमने लाइफ साइंस में एंटर किया है तो हमें इसके अंदर अपना फुल नॉलेज हमें लेना है, कहीं से भी हमें नॉलेज मिलता है तो हमें नॉलेज गेन करना है। अभी यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है एग्जाम पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, बुक को लेके, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक। हम अपना टॉपिक करते हैं, थोड़ा सा उसको रीड करते हैं तो आपको आइडिया होगा। जीआरएफ ज्वाइनिंग के लिए, जीआरएफ ज्वाइनिंग के लिए बच्चों अगर आप सपोज आपका जीआरएफ जस्ट क्लियर होता है तो विद इन 3 इयर्स आपको कोई लैब ज्वाइन करनी पड़ती है। यू हैव टू ज्वाइन एनी लैब ताकि आपका जीआरएफ एक्टिवेट हो सके। जीआरएफ एक्टिवेट करने के लिए हमें लैब को ज्वाइन करना पड़ता है। आफ्टर ज्वाइनिंग द लैब, जस्ट बेटा आपके कमेंट्स मेरे को इधर जस्ट ए सेकंड, पीएचडी करना जरूरी है? नहीं बच्चे, अगर आपको पीएचडी करना मस्ट नहीं है, अगर आपने एमएससी एंड नेट किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो यू हैव टू, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आफ्टर क्लियरिंग योर नेट, आफ्टर एमएससी एंड नेट यू आर एलिजिबल फॉर दैट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, and if you are interested in research field then you have to go for PhD। पूर्वा देशमुख, जीआरएफ के लिए you have to join any of the laboratory। बच्चों जो अपना जीआरएफ होता है वो 5 इयर्स तक वैलिड रहता है, 5 साल तक आपको गवर्नमेंट जीआरएफ प्रोवाइड करती है। सपोज आपने 2021 में आपने किसी लैब को ज्वाइन किया है, फॉर 5 इयर्स आपको गवर्नमेंट जीआरएफ प्रोवाइड करती है, आपकी फुल रिसर्च में आपको कंटीजेंसी देती है, आपको फेलोशिप पर मंथ देती है, आप बिल देते हैं आपको पर मंथ मिलती है। यस, अगर आपका रैंक अच्छा तो यू आर एलिजिबल फॉर जीआरएफ। अब अगर रैंक आपका कट ऑफ रहता है बच्चों, रैंक नहीं होता इसमें, कट ऑफ रहती है कि इतने पे हमारा कट ऑफ जाता है, 95 पे एलएस है, जस्ट एग्जांपल एज्यूम करते हैं 95 पे हमारा एलएस है तो मे बी 102 103 पे हमारा जीआरएफ क्लियर है। तो जीआरएफ अगर हमारे 103 से 103.5 नंबर भी हैं तो हमारा जीआरएफ है वो, तो उसमें रैंक काउंट नहीं करते कि अगर आपका फर्स्ट रैंक है तो आपको जीआरएफ ज्यादा मिलेगी। फेलोशिप इज सेम, सबके लिए फेलोशिप सेम है, कोई भी आपने रैंक होल्ड किया है, अगर हमारा कट ऑफ सपोज करो 103 पे हमारा जीआरएफ है, आपने वहां पे मार्क्स स्कोर किए 103.5, अगर आपने 0.5 मार्क्स भी ज्यादा लिया है वहां पे तो आप जीआरएफ है आपका। तो जैसे ही आपका जीआरएफ है
तो आपको सेम फेलोशिप मिलती है। अगर आपने एलएस क्लियर किया है अपना, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अटेम्प्ट दे सकते हैं 30 इयर्स तक। आप 30, आई थिंक अभी मुझे क्लियर मैंने देखा नहीं है, 35 या 30 इयर्स की एज है। गर्ल्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन रहती है, 35 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। लैब बच्चे, विच टाइप ऑफ लैब, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस में है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैंसर, तो आपको कैंसर के लिए लैब, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब ज्वाइन करनी पड़ेगी। लैब मीन्स किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी के, या आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। लैब डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। जैसे मेरा इंटरेस्ट प्लांट फिजियोलॉजी में था, तो मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के रिलेटेड ही लैब को ज्वाइन किया था। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर इंटरेस्ट। पूर्वा, आपका इंटरेस्ट बच्चे किस में है, आप कहाँ काम करना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट ओनली। एनी क्वेश्चन? Any question from any student? Okay. So students, our topic is photosynthesis. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बीच में। अगर यहाँ इंडस्ट्री में इसका क्या स्कोप है, इंडस्ट्री में स्कोप के लिए बच्चों, अगर आप इंडस्ट्री में भी स्कोप होते हैं, पर इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो वहां पे आपका जीआरएफ एंड एलएस को ज्यादा काउंट नहीं करते। वहां पे आपके सब्जेक्ट इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। किस तरीके से काउंट करते हैं, अगर आपने पीएचडी को अच्छी लेबोरेटरी से आपने पीएचडी किया है, अच्छी, अगर आपका जीआरएफ है, तो आप फुल इंडिया में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेट होने के बाद भी आप फुल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। आपने नेट क्लियर किया, आप किसी भी अच्छी लैब में अपना अप्लाई कर सकते हैं। आपने अच्छी जगह से अगर काम किया है, जैसे कुमार ने पूछा है इंडस्ट्री में इसका स्कोप, बच्चे अगर आपने अच्छी लेबोरेटरी से काम किया है, आपकी टेक्निक्स अच्छी हैं, अच्छी लेबोरेटरी में आपको एंट्री तब मिलती है जब आप एलएस क्लियर करते हैं या जीआरएफ क्लियर करते हैं। वहां पे आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। तो फिर आप जब किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपका सीवी जब देखते हैं, तो वो लैब का बहुत इम्पैक्ट होता है। एक आप छोटी सी लैब से कुछ करते हैं, एक आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। तो आपने अच्छी इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग आपको तभी मिलती है जब आपने एग्जाम को क्लियर किया है। इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैकेज लेते हैं। सम ऑफ माय कलीग्स दे आर टेकिंग 1 लाख 2 लाख पर मंथ। जीएनयू से उन्होंने एमएस पीएचडी किया है। जीएनयू से पीएचडी करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडस्ट्रीज, बायोटेक इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने उसको ज्वाइन किया है, तो वो बहुत अच्छा पैकेज ले रहे हैं वहां पे। तो डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। किसी का टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो उसको अपना एलएस क्लियर करने के बाद दे आर एलिजिबल फॉर द टीचिंग पोस्ट। अगर इंडस्ट्री में आपको जाना, तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छी लेबोरेटरी से अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर इंडस्ट्री। व्हाट कैन बी द एक्सपर्ट इन क्रैश कोर्स में। बच्चों, आपको जो क्रैश कोर्स में रहेगा, यहाँ पे आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में आपको, हमें जल्दी, हमारे पास लिमिटेड टाइम में हमें कोर्स क्लियर करना है, तो उसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो क्लास का सेशन है वो ज्यादा होगा आपका। वीक में 6 डेज आपकी क्लास रहेंगी। इस तरीके से उसमें हमारा काम ज्यादा हो जाएगा कि हमें 1.5 घंटा आपकी क्लास देनी है, उसमें हमें आपको प्रिपेयर करवाना है। क्रैश कोर्स में हमें लिमिटेड टाइम में अपना ज्यादा कोर्स कंप्लीट करना है विद फुल प्रैक्टिस। रेगुलर कोर्स में हम थोड़ा धीरे धीरे टॉपिक को थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हैं, पर इन क्रैश कोर्स वी हैव टू कंप्लीट द फुल कोर्स। तो उसमें हम टाइमिंग्स 1-2 आवर्स की क्लास ले सकते हैं। 6 days in a week we can carry our lectures. So that will be the main difference between crash course and regular course. Yes, of course you can clear. Be positive. हम यहाँ पे हैं आपके लिए। हम सब मिलके जब काम करेंगे, तो ऑब्वियसली वी विल क्लियर द एग्जाम। यहाँ पे टीचर्स ने एग्जाम क्लियर कर रखा, वो अपनी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कैसे उन्होंने क्लियर किया था। यस, यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। मिलके क्लियर करेंगे, मतलब ये एग्जाम आपका नहीं है, हम सबका एग्जाम है ये, हम सबको मिलके उसको क्लियर करना है। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को पॉजिटिव रखना है, यस वी कैन क्लियर, यस वी कैन क्लियर, वी विल वर्क हार्ड फॉर दिस एग्जाम। पॉजिटिव रहना है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पॉजिटिव माइंड सेटअप रखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट आपको सबसे मेन है, इंटरेस्ट क्लियर करो, अपना इंटरेस्ट देखना है हमें, कौन सी यूनिट्स हमारी इंटरेस्ट की हैं। इंटरेस्ट के बाद फिर हम पहले हम प्रॉपर रेडी होते हैं, ऐसे नहीं कि हम कहीं पे जाते हैं तो ऐसे ही चल पड़े। फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, उसके लिए हमें कुछ टाइम उसको प्रिपेयर करने में कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों वही मैं आपको बता रही हूँ, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है आपको, अपना इंटरेस्ट की यूनिट्स देखनी है। कुमार मैं वही बोल रही हूँ, यू हैव टू सिलेक्ट योर यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट। वही बोला था मैंने, फुल कोर्स इज नॉट नेसेसरी, फुल कोर्स नहीं करना, हमें जस्ट कुछ पार्ट को, क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वांटिटी मेंटेन नहीं करनी। वही मैं बोल रही हूँ कि हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है, आफ्टर दैट हमें उस पे प्रैक्टिस करनी है। वी हैव टू टेक फुल फोकस ऑन अवर यूनिट्स, अवर इंटरेस्टेड यूनिट्स। जब हम अपने इंटरेस्ट की, वही है ना, जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी, वायरस एंड बैक्टीरिया इंक्लूडिंग द माइक्रोबायोलॉजी, वायरस एंड बैक्टीरिया से बच्चों इतना मतलब, देखो मैंने आपको बोला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, फर्स्ट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। नेक्स्ट फिजियोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। 8 और 9 क्वेश्चन सी सेक्शन में हर बार हमें देखने को मिलते हैं। उसके भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट फाइटो हार्मोन्स, उसमें साइटोक्रोम्स ये सब रहता है, एनिमल हार्मोन्स, सिस्टम्स, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। इवोल्यूशन इजी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हर बार क्वेश्चन आप पेपर उठा के देखेंगे तो हर बार क्वेश्चन पूछते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, एक 4 मार्क्स में, एक 2 मार्क्स में। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद जो रहता है हमारा इकोलॉजी, इकोलॉजी से क्वेश्चन, एलेंस रूल, किन सिलेक्शन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। वायरस बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछते हैं कि इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछते हैं, द क्वेश्चंस आर लाइक बेसिक क्वेश्चंस, इम्यूनोग्लोबिन्स पे, इन अवर सलाइवा व्हिच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रेजेंट, 2 मार्क्स में बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्लास में जो अटेंड करेंगे वो सफिशिएंट रहेगा, मोर देन सफिशिएंट। जस्ट ए मिनट, जैसे यहाँ पे अभी हम जब टॉपिक करेंगे तो इसके बाद मैंने क्वेश्चन डाला है नेट का, ये आप टॉपिक करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, आप मेरे को उसका आंसर खुद देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी कोई भी डाउट है यहाँ पे, जब हम टॉपिक करेंगे, जैसे ही हमने फोटोसिंथेसिस किया, सपोज करो हमने फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन हमने किया है, लाइट रिएक्शन करने के बाद हम उसके 2-3 ये से क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे, तो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मुझे नहीं आते वो क्वेश्चन, आप मेरे को बताएंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। यस, पीपीटी भी मिलेगा कुमार आपको बच्चे, पीपीटी मिलेगा, टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा, यूट्यूब पे भी आपको लिंक शेयर होगा, एवरीवेयर। नोट स्टडी मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, यूट्यूब का लिंक, अगर आप सपोज करो ड्यू टू एनी रीजन आप लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते तो यूट्यूब पे भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है हमारा। तो बच्चों को प्रॉब्लम, मतलब आपकी फुल फैसिलिटीज को हमने ध्यान में रखा कि बच्चे मे बी अटेंड ना कर पाए, तो ऑन यूट्यूब you are able to find a lecture, on telegram you will find the ppt, all the study material and all the books, everything will be there। टॉपिक के पीपीटी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, एमसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। आपको बस मिलके हार्डवर्क करना है हमारे साथ। From last 4 years I'm teaching the students, MSc students, I'm guiding the students। मैंने बहुत सारे से क्लियर किया है, ऐसे लास्ट 4 ईयर से वही है कि कैसे कैसे हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इसमें मेन हमारा वही है बच्चों, मैंने आपको बोला था कि स्मार्ट स्टडी, गधा होता है डंकी पूरा 12 घंटे काम करता है, आउटपुट 0 होता है, घोड़ा होता है कुछ टाइम काम करता है, आउटपुट ज्यादा निकलता है। तो हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट।
इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क, बट साथ साथ स्मार्ट वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हार्ड वर्क करते रहते हैं, उसका आउटपुट जीरो है तो उसका कोई फायदा नहीं है। लास्ट में हमारा रिजल्ट दिखता है सबको, तो वो हमें स्मार्ट वर्क से मिलता है, हार्ड वर्क से नहीं। So let's move towards the topic photosynthesis. Let's start the topic, students. Photosynthesis. सबको पता है what photosynthesis? Photosynthesis is the process. The most important process is photosynthesis, because with the help of photosynthesis, the green plants, they are synthesizing their food and we are getting the oxygen. Clear? The plants are synthesizing the glucose molecule and we are getting the oxygen. सबको पता है ये बात, तो basic definition है. Definition of photosynthesis. It is present in all the autotrophic organisms. Clear? Photosynthesis, the process takes place in all the autotrophic organism. The process of photosynthesis is anabolic process. आप सबको पता है what is difference between catabolic and anabolic process? What is anabolic process? Any of the student please message me in chat box. What is the difference between catabolic process and anabolic process? Yes, anabolic means the small molecules, they combine together to form the complex molecule. Shown in the reaction, yes, catabolic, yes, building up and breaking, yes, Kumar, yes, Jansi, very good, very good. The photosynthesis is the anabolic process. Carbon dioxide molecules plus water molecules. These molecules combine together and they form the glucose molecule, and we are getting the energy, oxygen. So it is the anabolic process. Embryonic process means it stores the energy, it stores the carbohydrate in their body. It takes place in the presence of light. Photo means light. Synthesis means synthesize karna. In the process of photosynthesis, the plants synthesize their food in the presence of sunlight. Clear? सबको पता है photosynthesis ऐसा तो नहीं होता कि only plants में होता है. Photosynthesis takes place in plants, algae and some of the prokaryotes. Green algae, which all the animals, all the organisms which contain the chlorophyll, they are able to synthesize their own food. So in some plants, in algae and some prokaryotes, they are able to synthesize their food. Clear? Then the next point that comes in our mind, the site of photosynthesis. हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे? फुल प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. फुल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता कि हम ऐसे बोले कि फुल प्लांट स्टेम में भी, रूट में भी, कहीं पे भी होता है. फोटोसिंथेसिस स्पेसिफिकली ऑर्गेनेली में होता है. हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, यस, ग्रीन लीफ इज ओके, मिलिंग ग्रीन लीफ इज ओके इन केस इन ग्रीन लीफ, इन मेसोफिल सेल. Green leaf, the specific part is mesophyll cell. The mesophyll cell contain the chloroplast, and chloroplast contain the chlorophyll pigment. And with the help of the chlorophyll pigment, this photosynthesis takes place. Chloroplast क्या होते हैं? First of all, we must know what is chloroplast. Chloroplast क्या होते हैं? Pigments होते हैं अपने. Chloroplasts are the pigments. और जब इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यस, क्लोरोप्लास्ट contains the chlorophyll pigment which help in the process of photosynthesis. The chloroplast is present in the mesophyll cell. Chloroplast is present in the mesophyll cell and they contain the chlorophyll pigment which help in the process of photosynthesis. Clear? So हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हैं. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आई थिंक सबको क्लियर है.
Chloroplast contains two membranes, outer membrane and inner membrane. Outer membrane is freely permeable and inner membrane is less permeable. Then it contains the thylakoid and the liquid part is called the strena and the stack of thylakoid is called as the granum. Clear? ये पॉइंट स्ट्रक्चर इसे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, मैं आपको ये क्लियर करती हूँ. आफ्टर दैट आई विल आस्क द क्वेश्चन, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. द thylakoids they combine together and they form the granum. देखो thylakoid, एक thylakoid, दो thylakoid, तीन thylakoid. जब ये ऐसे इस तरीके से 8-9 thylakoids आपस में कंबाइन करते हैं, the group of 8 to 9 thylakoids is called as the granum. It is called the granum. Clear? The granum, they are connected with each other with the help of stroma lamellae. And the liquid part is called as stroma. जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, cytoplasm is the liquid part. In the same way, in case of chloroplast, the stroma is the liquid part. Clear? Stroma is the liquid part, and in this stroma, thylakoids are present, and the group of thylakoids is called as the granum. Stroma is the site of dark reaction, and in the thylakoid, light reaction takes place. In case of stroma, dark reaction takes place. On the other hand, in case of thylakoids, light reaction takes place. Clear? Clear? This point is clear to all the students? ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों आपसे, in which part light reaction takes place and in which part the dark reaction takes place. Everyone, yes, very good, very good. So in thylakoid, light reaction takes place and in the stroma, dark reaction takes place. अभी हम light reaction और dark reaction को डिटेल में पढ़ेंगे. Light depend photosynthesis के two terms होते हैं, light dependent and light independent. They are connected to each other by stroma lamella. Thylakoids combine together and they form the grana, and the grana are connected with each other with the help of stroma lamellae. Clear? तो बच्चों अभी हम जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में मेन क्या रहता है, टू रिएक्शंस होती हैं, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट. क्लियर? लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट. लाइट इंडिपेंडेंट उसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं. केल्विन साइकिल आपने नाम सुना होगा, उसको C3 साइकिल भी बोलते हैं. बच्चों सबने नाम सुन रखे हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, कैम पाथवे, ऑल ऑफ दीज आर द पाथवे. सो C3 साइकिल उसको हम C3 क्यों बोलते हैं, उसकी साइट क्या होती है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, पर हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए. क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था एक बार बी सेक्शन में, अभी मेरे को ईयर याद नहीं है, आई थिंक 13 या 14 में क्वेश्चन था. इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ऑप्शंस thylakoid and stroma, grana, stroma, and some options were also there. So we have to keep in our mind that stroma is the site of dark reaction and thylakoid is the site of light reaction. इजी बात है, बच्चे इस पे फोकस नहीं करते क्योंकि बेसिक को हम स्किप कर देते हैं. हम सोचते CSIR है, पता नहीं कितना हाई लेवल पूछेंगे. तो बी पार्ट में बेसिक्स भी पूछते हैं, तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड हमें मूव करना है, बेसिक्स नहीं छोड़ने, क्योंकि जो बी पार्ट होता है हमारा बेसिक से ही निकलता है वो. तो बच्चों को क्या रहता है कि नहीं CSIR इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे तो हमें ध्यान ही नहीं देना. फिर वहां पे पेपर में कंफ्यूज होते हैं, 2 नंबर हम लेके आ सकते थे पर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हमने रॉन्ग कर दिया. सो बेसिक पे भी फोकस करना है, बेसिक टू हायर हमें मूव करना है. क्लियर? देन यही पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट के पास स्ट्रोमा इज द फ्लूइड, ग्रेना इज द स्टैक ऑफ thylakoid, मींस the thylakoids they combine together and they form the grana. The thylakoids contain the chlorophyll pigment, and what is chlorophyll? Chlorophyll is the green pigment which capture the light for photosynthesis. Chlorophyll के just a minute बच्चों, अभी मतलब आज अपने पास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखाती हूँ कैसे होता है. सो यहाँ पे देखो, ये हमारा लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक पाथवे है. यहाँ पे P680 ये हमारा रिएक्शन सेंटर होता, फोटो सिस्टम होता, उसको हम डिटेल में करेंगे. यहाँ पे हमारी लाइट एनर्जी फॉल करती है,
फिर इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है। ये पाथवे हमें पढ़ना है पर इसको बाद में करेंगे हम। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया था। सो क्लोरोफिल इज द पिगमेंट व्हिच कैप्चर्स द लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर? फुल क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता कि फुल क्लोरोप्लास्ट में कहीं पे भी लाइट जाती है। स्पेसिफिक रिएक्शन सेंटर्स होते हैं P680, P700, ऑल ऑफ दीज आर द रिएक्शन सेंटर जहां पे हमारी लाइट एनर्जी फॉल करती है, तब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। सो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है व्हाट इज स्ट्रोमा, व्हाट इज ग्रेना, व्हाट इज थैलेकॉइड, व्हाट इज क्लोरोफिल। यस मिलिन, वेरी गुड। So the next point, types of chlorophyll. Chlorophyll की type and उसके source हमें ध्यान देना। What are the types of chlorophyll and what are the sources of chlorophyll? Chlorophyll is of chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, D, F. ऐसे से types होती हैं। The most important are chlorophyll A and B. इसके structure से question पूछा है बच्चों एक बार। Structure of chlorophyll से question पूछा है हमसे, तो हमें structure पे भी focus करना है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के पास फाइटोल टेल है, पोरफायरिन रिंग होती है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल ए जो होता है उसके पास मिथाइल ग्रुप होता है, क्लोरोफिल बी के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए कंटेन्स द मिथाइल ग्रुप and chlorophyll B contains the aldehyde group. This is the structure of chlorophyll. It contains the center magnesium ion. 4 molecules attached to it. For it contains the porphyrin pigments. समझ नहीं आ रहा स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर बच्चों विजिबल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगी स्ट्रक्चर कैसे होता है। बस आपको यहाँ पे माइंड में इतना रखना है कि क्लोरोफिल की टाइप क्या क्या होती है और उसके पास कौन से पार्ट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए इट कंटेन द मिथाइल ग्रुप एंड क्लोरोफिल बी इट कंटेन्स द एल्डिहाइड ग्रुप। ये स्ट्रक्चर विजिबल नहीं है क्लियरली यहाँ पे, थोड़ा सा हम यहाँ से देखते हैं। What is chlorophyll? Chlorophyll is a chlorine pigment. It is structured to porphyrin pigment. जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, उसके पास आयरन होता है सेंटर में। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल के पास मैग्नीशियम होता है सेंटर में। So the structure is same as that of the heme structure. Magnesium is present. It contain the porphyrin pigment. Contain the phytol tail. Phytol tail इसके पास रहता है इस तरीके से। क्वेश्चन माइंड में हमें यहाँ से जो पॉइंट रखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए इट कंटेन द मिथाइल ग्रुप एंड क्लोरोफिल बी इट कंटेन्स द एल्डिहाइड ग्रुप। जो क्लोरीन रिंग इट कंटेन्स डिफरेंट साइड। स्ट्रक्चर को बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, अभी आपको इतना ही समझना है इसको। नाउ कम टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Process of photosynthesis. Photosynthesis is divided into two reactions, light dependent and light independent. ये बात मैंने आपको बोली थी। Photosynthesis is divided into two. यार ये थोड़ा सा इसकी सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसको थोड़ा देखते हैं कि कैसे करना है ताकि फुल स्क्रीन आपको विजिबल हो। Photosynthesis light dependent and light independent. इसको हम light reaction भी बोलते हैं and it is called dark reaction. Dark reaction का मतलब ये नहीं होता कि वो रात में होती है, वो लाइट की प्रेजेंस में हो सकती है और विदाउट लाइट भी हो सकती है। पर लाइट डिपेंडेंट जो होती है इट टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड लाइट इंडिपेंडेंट इट डजंट मीन दैट इट टेक्स प्लेस एट नाइट। ऐसा नहीं होता कि बच्चों को रहता है डार्क रिएक्शन मींस रात में होती है, ऐसा नहीं होता। डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों बोलते हैं, ये पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। डार्क रिएक्शन को बच्चों हम डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लाइट रिएक्शन होती है ये ATP एंड NADPH को सिंथेसाइज करती है और जो ATP और NADP यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं। क्लियर? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? Photosphorylation means the synthesis of ATP in the presence of light. Light dependent है तो photo तो आना ही है। It is light dependent, so photo is the main term. So photophosphorylation means the synthesis of ATP in the presence of light. So light dependent reaction is classified into cyclic photophosphorylation and non-cyclic. Cyclic and non-cyclic की terms हमें clear करने, why it is called as cyclic, why it is called as non-cyclic.
ये टर्म हमें क्लियर करनी है। अभी हम उस पे ही चल रहे हैं। अभी आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। मे बी आपका आज के लिए सर टाइम इज ओवर सफिशिएंट है, बच्चों को नहीं हो जाएगा तो मे बी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करें लाइट रिएक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Students, we will discuss in next class about the process of photosynthesis because it is the most important topic। और इसको हमें ऐसे नहीं करना क्योंकि मुझे भी पता कि हर माइंड की कैपेसिटी होती है 1 घंटे से ज्यादा सुनने में हमें बोरियत लगता है। समझ बच्चा स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी दिखाऊंगी, उसमें स्ट्रक्चर क्लियर होगा आपको अच्छे से। क्योंकि अब हम हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है कि 1 घंटे का या तो हम बीच में गैप लें, 10 मिनट्स का हम बीच में ब्रेक लें, हम दोबारा स्टार्ट करें तो पॉसिबल है। आज तो हमारा मेन फोकस था कि हमें अपना स्ट्रेटजी देखना था, तो 1 घंटे से ज्यादा दिमाग में एंटर आपको बोरियत लगेगा कि मैम तो बोले ही जा रही है बोले ही जा रही है। हमें ऐसे नहीं करना, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम फ्रेश माइंड से नेक्स्ट क्लास में फुल प्रोसेस को रीड करेंगे, फिर साथ साथ हम क्वेश्चंस करेंगे। बी प्रिपेयर, अटेंटिव होके क्लास में बैठना है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को बताएं। दिव्या, मानसी, तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ तक जो भी पॉइंट्स बताए हैं उसमें किसी को भी कोई भी डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। आई स्टूडेंट्स क्लियर? मैम स्ट्रक्चर एक बार और बता दीजिएगा। Yes, yes, I will tell the structure. Definitely, Kumar, I will tell the structure. I will explain the full structure. Not an issue. Next जो लेक्चर होगा उस अभी तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसमें हमने किया स्ट्रक्चर को। मैंने बोला था कि आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, ड्रॉ करके पिक्चर से हम पिक्चर एक ऐप होती है उससे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके यहाँ पे वो आपको क्लियर करूंगी मैं यहाँ पे। डोंट वरी, वो तो मुझे खुद पता है कि उस स्ट्रक्चर का मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि वो स्ट्रक्चर वहां पे क्लियर नहीं है, बस हमें वहां पे कंसेप्ट देखना था कि क्लोरोफिल ए क्या है एंड व्हाट इज क्लोरोफिल बी, वो पॉइंट देखना था स्ट्रक्चर के लिए। यस 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 मिले, ऑफ कोर्स आई विल रिपीट। लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। बच्चों क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 रिएक्शंस, one is light dependent and other is light independent. Light dependent means the reaction which takes place in the presence of light. मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ। So this is our light dependent reaction. Light dependent reaction, it takes place in the presence of light and it occurs in the thylakoid membrane. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है थैलाकॉइड में होती है और ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। ये 2 टाइप से होती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। इसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो पिगमेंट्स पे आके, ये बच्चों पूरा पाथवे मैंने बोला था कि उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच जनरेट होते हैं। एटीपी एंड एनएडीपी जनरेट होते हैं और ये जो एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, इनको प्लांट्स डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। हम जब नेक्स्ट क्लास अपनी होगी तो उसमें हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का बहुत बड़ा पाथवे है मिली, उसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक कैसे, देखो ये हमारा नॉन साइक्लिक पाथवे है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे मूव करते, इससे क्वेश्चन पूछते हैं 4 मार्क्स में। फोटोसिंथेसिस के नॉन साइक्लिक और साइक्लिक से क्वेश्चन आता है। तो इन केस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपी आर जनरेटेड and these ATP and NADP are used in the dark reaction. Dark reaction क्या, देखो जैसे दिन रात ऐसे चलते हैं। सेम फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट में क्या होता है, प्लांट्स दे सिंथेसाइज द ATPs and NADPH and these ATPs and NADPH are used in the dark reaction। क्योंकि डार्क रिएक्शन के पास ये एफिशिएंसी नहीं होती कि वो एटीपी को सिंथेसाइज कर सके। वो क्या करते हैं, जो एटीपी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में फॉर्म हुए हैं उनको यूज करते हैं। इन केस ऑफ डार्क रिएक्शन दे आर यूजिंग द एटीपीज एंड एनएडीपीएच फ्रॉम द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इन केस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे एटीपी और एनएडीपीएच जनरेट होते हैं। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक।
ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हम फुल एक्सप्लेन करेंगे। डार्क रिएक्शन में एटीपी क्यों नहीं बनते? बिकॉज डार्क रिएक्शन जो होती है दे ऑलवेज टेक्स प्लेस इन विदाउट द लाइट। उसमें लाइट फॉल नहीं करती, उस मतलब लाइट का उसमें फॉल नहीं होता। जब तक लाइट फॉल नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स में एक्साइटेशन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते तो अलग अलग रिसेप्टर्स के पास मूव करते, जैसे प्लास्टोक्यूनोन से प्लास्टोसाइनिन के पास जब जाता है तो एटीपी जनरेट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक्साइट होते हैं तभी एनर्जी जनरेट होती है और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। इन केस ऑफ डार्क रिएक्शन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता कि वहां पे हमारे फोटॉन्स आके फॉल नहीं करते। जब फोटॉन्स वहां पे फॉल नहीं करते रिएक्शन सेंटर के ऊपर, जब तक फोटॉन्स फॉल नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में एक्साइटेशन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे फ्रॉम फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो एटीपी का जनरेशन नहीं हो सकता। क्योंकि एटीपी जनरेट होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होता है। जैसे स्लाइड रिएक्शन में क्या होता है, जब हम इस रिएक्शन को पूरा पढ़ेंगे ना बच्चों, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है इसको क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। जब हम रिएक्शन को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि लाइट रिएक्शन में एटीपी जनरेट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे एटीपी जनरेट होने का फुल प्रोसेस होता है। डार्क रिएक्शन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए वहां पे एटीपीज और एनएडीपीएस जनरेट नहीं होते। क्लियर? रिएक्शन पढ़ने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सर। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो स्टूडेंट्स ये सेशन, हाँ जैसे कि अर्पणा मैम ने कल आपको बताया स्ट्रेटेजी और एनालिसिस किया सिलेबस का, उसी तरह पूजा मैम ने भी अपनी तरफ से आपको बता दिया कि क्या सिलेबस है, किस तरह से एनालिसिस करना है, क्या चैप्टर्स आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस तरह से मैम ने भी अपना सजेशन दिया है। और फर्स्ट वीक है ये, तो आप लोग पहले टीचर्स के साथ, लेक्चरर के साथ फैमिलियर हो जाइए। यू जस्ट बी फैमिलियर विद आवर फैकल्टी मेंबर्स, तो आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो आप लोग को ऑलरेडी नंबर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल भी मुझे आ रहे हैं, वो मुझे रजिस्ट्रेशन और फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो आप लोग भी जितना जल्दी हो डेमो क्लास करके अच्छे से रजिस्टर कर लें अपने आप को और हमारे साथ जुड़ें और अपना सीएसआर को क्रैक करें। और हमारी विशेष आपके साथ हमेशा रहेंगी और हमारे जो फैकल्टीज हैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं। आप उनको कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और फिर से हमारा कल का भी क्लास है, तो अभी फर्स्ट वीक में आप हमारे सारे फैकल्टीज मेंबर के साथ इंट्रोड्यूस हो जाइए अच्छे से। अभी क्लास को अटेंड कीजिए और बस रेगुलर रहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन आल्सो। So just be connected with us. You can Thank you I students, think thank you for maintaining that silence, for cooperating with me. Thank you all the participants. I would like to request our organizer Sir, to put the feedback link in the comment section. Yes ma'am, yes ma'am. Thank you. Okay students. Sir, can I left the Yes ma'am, meeting? it was, yeah ma'am, it was very informative. You may leave ma'am. Okay sir, thank you students, thank you all the participants. If you have any query you can ask me anytime. You are free to ask anytime. Thank you students, take care, be safe. So students, we will meet you tomorrow also. Try to share this link and try to share this information with your friends also. We expected that a huge amount of students will join, but it is little bit low. But please share this information with your friends too, with your friend circle. And please fill the feedback link today, then you can leave the meeting. Tomorrow our another faculty Vinayan sir from Kerala will guide you
we'll take another class. Please subscribe our YouTube channel. This video will be uploaded in the YouTube also. And we will provide you all the PowerPoints with you in the Telegram group itself. Thank you everyone. Thank you for attending. Just register it soon so you all can be benefited. We will work hard with you. So I think all have left the meeting. You can now shut the meeting off.